Hey, hi, Vanchika this side. So I just wanted to talk about a thing and actually just give some people suggestion. If by any chance you're surrounded by a situation or people who don't support you, who make you feel like you are less, who make you feel like you are not that worthy enough, you are some sort of an organism that is not supposed to live, and you're not that deserving, you're worthless, you're useless, you can't do something. And because of those things, you have started to feel like that in yourself. And when you start to feel like them about yourself, then it becomes a problem that really needs to be sought out at the earliest because age will increase. Okay, there's no coming back to the time you're in right now, and that holds for everybody, not just for you. But I am telling that if you have that thought in your head and you keep going on with the time, just ignoring that thought, that thought won't affect you. Maybe I want to hold your hand. I want to tell you that it will affect your head at some point, and तुम सोचोगे उस टाइम कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये चीज़ कर क्यों नहीं पा रही हूँ, because in your head somewhere you feel that the people who told you those things, who made you feel like that, they are correct. एंड तुम चाहे मुँह पे बोलो कि नहीं, बोलो करेक्ट नहीं है, बोलो गलत है, ये है वो है, बट इन योर सेल्फ तुमने वो चीज़ खुद वो चीज़ मान ली है क्योंकि तुमने अपने उस थॉट को रिजॉल्व नहीं किया अपने हेड में और टाइम बढ़ता गया तो तुम्हारे हेड में वो चीज़ रही है। एंड फर्दर मोर तुमने शायद तुम्हारे से कोई ऐसी चीज़ हो गई हो कि मतलब तुमने अपने पोटेंशियल को मीट ना किया अभी तक, तो वो जो एक्शन है जो तुम अभी कर रही हो, तुमको प्रायरली तुम्हारे जो थॉट इंट्रोड्यूस हो गया तुम्हारे हेड में और तुमने रिजॉल्व नहीं किया तो अपने हेड स्पेस को उस टाइम उस चीज़ की वजह से तुम और क्लटर्ड हो जाओगी। तो आई वुड क्लटर हो जाओगे। आई एम डिनोटिंग टू एवरीबडी, ठीक है, whoever want to take it can take it, and I would really like you people to understand this कि you really need to not see others' perception about you as who you really are. People change, okay? People change, but you trying to make others change is not very useful. Until unless they don't want to change, they won't change. And ये मैंने खुद से ट्राई किया है, so I'm letting you guys know, don't waste your energy in trying to convince people who are just so rigid कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनको लेजिट कोई रियलाइजेशन हिट नहीं करेगी। ऊपर से जब तुम बोलोगे रियलाइज करने को तो तुम्हें मुँह पे तो झूठ बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, या फिर वो दूसरी चीज़ करेंगे, दैट इज बाहर में जाओ तुम, मैं नहीं कुछ रियलाइज करता, मैं हूँ नॉन चैलेंट, दैट इज हु आई एम। एंड ऐसी ही दुनिया है, ये प्रैक्टिकल दुनिया है, ये इमोशंस पे नहीं चलती है। आई डू अंडरस्टैंड, बट द पीपल लिविंग ओवर हियर, सम पीपल ऑफ देम डू हैव इमोशंस इन देमसेल्व्स, एंड दीस bastards out there who think that they are nonchalant as they have that nonchalant as they are so damn rude, they are so damn egoistic, they are so damn rigid that they don't want to have the brain cell left in themselves कि वो कुछ बात सुन के समझ लें, सुन जरूर लेंगे बट सुनिए कि उनको मुंह पर चलाना है, मुंह से भौंकना है उनको। तो I don't want to go in that energy in fighting, in assuming कि वो मेरे सामने ना, I'm just fighting. I don't want to go in that energy. But I just want to say to every other human being, despite of what age you are at, तुम 40 के हो, तुम 50 के हो, तुम 60 के हो, मतलब basically आप लोग 40 के हो, 50 के हो, 60 के हो, I'm sorry for using the word तुम, because you haven't done anything wrong to me, so why should I be saying तुम लोग, so I apologize for that. But मतलब मैं जो point बोली थी वो ये था कि आप कि कोई भी एज हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, कोई भी एज हो, and you think that the solution of this problem is for you to take another birth. I do understand that energy जो होती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है, एनर्जी वो फ्लो करती है, एनर्जी फ्लो करती है, मेरे को पता है, मैं ये चीज़ जानती हूँ, बट दैट डजंट मेक यू लुक एट द लाइफ एज ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए तभी हमारी नई लाइफ चलेगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और आपको ऐसी चीज़ सोचनी भी नहीं चाहिए। बट अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगली लाइफ होगी तभी चीज़ें सॉर्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगली लाइफ होगी वो आपकी इस बॉडी में नहीं होगी, अगली लाइफ होगी आपकी किसी और बॉडी में। सेकंड ये चीज़ तो मैंने आपको ऐसे बताई कि मतलब मैंने जो चीज़ सुनी है, बट अभी हमारे पास कौन से फैक्ट्स हैं कि दूसरी लाइफ एग्जिस्ट करती कि नहीं करती है, वी डोंट हैव द फैक्ट्स। थर्ड, इफ अ पर्सन इज देयर हु हैज जस्ट गिवन अप ऑन देयर लाइफ एंड दे डोंट इवन वांट एनी अदर लाइफ, मतलब नेक्स्ट लाइफ होगी ऐसा कुछ, तो मैं आप लोगों से सही में आप लोग की आंखों में आंखें डाल के आपके हाथ पकड़ के चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कृपया कर आप जिन लोगों के थ्रू ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप ये सब फील कर रहे हैं, वो तो ब्लेम ही है ही, उनको तो ब्लेम करना था, बट अब आप अपनी एनर्जी प्लीज़ वेस्ट मत करिए उन लोगों को कन्विंस करने में कि तेरी गलती थी, तूने ये चीज़ें करी, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से डोंट वेस्ट योर एनर्जी, उससे कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जो इंसान खराब कर रहा है उसके अंदर वो चीज़ रियलाइजेशन कभी हिट नहीं करेगी अनटिल अनलेस वो खुद वो चीज़ फील करे, उसके साथ वो चीज़ हो रही है, फिर वो अपने साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे। अगर वो चीज़ वो नहीं करता है, उसको कभी किसी ने सिखाया नहीं, उसने सीखा नहीं है, तो वो अपने साथ कभी बैठेगा नहीं, सेल्फ टॉक करेगा नहीं, उसको रियलाइजेशन कभी हिट करेगा नहीं, ठीक है। तो आप वो चीज़ आशा वो लगाना छोड़ दीजिए। मुझे पता है आप लोग कुछ लोगों से बहुत बेपनाह प्यार करते हैं, आप लोग के तो बच्चे भी हैं, तो आप अपने बच्चों से मतलब अनकंडीशनल लव करते हैं, डिस्पाइट ऑफ हाउ दे बिहेव, आप उनसे वापस प्यार करेंगे नो मैटर व्हाट दे डू। बट लविंग समवन डजंट गिव द पर्सन यू लव अ वीआईपी कार्ड टू डिसरिस्पेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपके पास अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड डोंट यू डेयर थिंक कि मनी आपको रिस्पेक्ट के काबिल बनाता है। हाँ, मनी आपको रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में, दिस सो कॉल्ड सोसाइटी, मेरे को सोसाइटी बहुत खराब लगती है वैसे ही। आई हैव टू गिव अनदर शॉट लाइक अनदर वीडियो फॉर इट कि मेरा व्यू सोसाइटी को लेकर ऐसा क्यों है, बट मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि जो मनी है वो आपको मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में वैसी रिस्पेक्ट देता है, वैसा ऑर्डर देता है, यू डोंट हैव टू स्पीक बट योर मनी विल स्पीक, ऐसा चीज़। बट व्हेन यू आर इन योर होम, व्हेन यू आर इन योर प्लेस, व्हेन यू आर इन योर स्पेस, इन दैट स्पेस आई रियली डोंट थिंक कि मनी की वजह से आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या आपको मनी के आधार पे आपा जापा जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि आप इस चीज़ के काबिल नहीं हैं, आपको ये लाइफ खत्म कर देनी चाहिए, अब इसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, येस आई डू अंडरस्टैंड, आई डू गेट इट। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा परेशान करता है इंसान को, लोगों को बहुत कंडीशन हो जाती है, मेरे को खुद को टिनाइटिस था, अभी भी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, आई डू गेट एवरी बिट ऑफ इट, बट यू नीड टू रियलाइज माय फ्रेंड दैट लाइफ इज नॉट अबाउट स्ट्रेसिंग अप, लाइफ इज नॉट अबाउट स्ट्रेसिंग अप। एंड आप लोग को ये सब चीज़ें पता होंगी, ये सब चीज़ें पता होगी, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको ऐसा कभी लगता होगा कि तो सब फिलोसफिकल चीज़ें हैं, बट दिस इज द रियलिटी। यू नीड टू से टू योरसेल्फ दैट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्गर देन दिस। आटू झाटू लोग तुमको कुछ भी बोल सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, बट आप उन लोगों को अपने आप को अफेक्ट मत करने दो। डोंट यू लेट देम एंटर योर जोन। तुमको अगर पता चल जाए वो बदतमीज है, भाई निकलो वहाँ से, निकलो, और वहाँ से नहीं निकल सकते, दैट इज योर स्पेस, तो अपना दिमाग वहाँ से निकालो, अपना दिमाग वहाँ से निकालो और अपने आप को भूलो मत। ये जितने लोग अपनी लाइफ के पीछे पड़े ना कि हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, प्लीज़ 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 निबंध क्या होता है, काइंडली, मतलब हिंदी में वर्ड होता है प्रिय निवेदन है, मेरे को नाम नहीं आता, निमंत्र निवेदन, निमंत्र पता नहीं नाम याद आ रहा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा आपसे बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है कि मतलब आप प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग लाइफ लाइक दिस।
विद अ बिगर पर्सपेक्टिव, यू नो आपकी लाइफ अगर आप 60 की भी हो ना, 40 की भी हो ना, 50 की भी हो ना, जितने भी हो, स्टार्ट लुकिंग योर लाइफ लाइक दिस। यू हैव मेनी पीपल एंड मेनी पीपल, मेरे को खुद को भी मेनी पीपल नहीं है, बट आई नो कि अभी नहीं है ना, अभी नहीं है। स्टार्ट लुकिंग थिंग्स लाइक दैट, अभी नहीं है। एंड प्लीज आप ऐसे मत सोचो, क्योंकि आप जब ऐसा सोच रहे हो ना, आप एक्चुअली में अपने आप को भूल चुके हो। स्टार्ट रिकॉलिंग योर रियल सेल्फ, द सेल्फ हु वांटेड टू लिव, द सेल्फ हु वांटेड टू सी अ स्टोरी आउट ऑफ देयर लाइफ, टू सी हाउ थिंग्स विल गो गुड। आपको अपने लिए होप रखनी पड़ेगी, एंड वो होप एक दिन में नहीं आने वाली है, क्योंकि आपने विद टाइम अपने अंदर वो थॉट इनकलकेट होने दिया ना। आपने एक बार में तो उनको उसको थॉट को तोड़ा नहीं ना, उससे फेस टू फेस बात करी होगी, तभी रेजोल्यूशन नहीं निकला होगा। आई अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट। आपने अपने से पूरा ट्राई करा होगा सामने वाले को सुधारने का, वो नहीं सुधरा होगा, क्योंकि उसकी समझ जाओ, ठीक है, मैं गलत शब्द यूज नहीं करना चाहती, उसकी है नहीं, उसके ब्रेन सेल्स लेफ्ट नहीं है, उसके ब्रेन सेल्स रॉट हो चुके खत्म है। तो आपको कुछ समझा लो उसको, आप उसको पुस्तक दे दो, आप उसको कोर्स में एनरोल करा दो, उसका बुद्धि नहीं चेंज होने वाला। उसकी बुद्धि तब चेंज होगी जब वो खुद से उसको वो चीज़ फील हो। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जितने घटिया होते हैं उन लोग को खुद से कभी रियलाइजेशन हिट करती है। आप लोग तो कितने सारे वो भी देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, जिसमें अभी मैंने मतलब 11th में थी मैं, तब मैंने कम से कम 6वीं बार देखा था। एक वो मेरे भैया का केस हुआ था, उसमें जो रेपिस्ट थे उन लोग की वीडियोस देखो, उनके फेस पे 1% गिल्ट दिख जाए आपको, 1%, तो मेरे को बता देना गिल्ट क्या। वो लोग तो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि उनका हक बनता है, उनका ना हक बनता है, क्योंकि वो उस जेंडर से हैं, इसलिए उनका एपरेंटली हक बनता है। फुल शॉट देयर बास्टेड आउट देयर, ब्रैट्स आउट देयर, बट नॉट मोर देन दोस पीपल जो ऐसी मेंटालिटी होल्ड करते हैं। एंड सेम गोज विद द पीपल हु डोंट रियलाइज देयर मिस्टेक्स, वो भी ऐसी मेंटालिटी के होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो रेपिस्ट मेंटालिटी, मोलेस्टर मेंटालिटी, असॉल्टर मेंटालिटी के होते हैं, बट आई एम डेफिनेटली सेइंग कि वो असॉल्ट वाली मेंटालिटी के होते हैं। असॉल्टर वैसा नहीं, मतलब फिजिकली असॉल्ट, मतलब बेसिकली बहुत टैलेंटेड के होते हैं, बट मैं असॉल्ट मैं बोल रही हूँ कि ये लोग रेपिस्ट मेंटालिटी के होते हैं। ऐसा मैं प्रूव नहीं कर सकती, बट आई कैन डेफिनेटली प्रूव दैट दीस आर पीपल हु डोंट रियलाइज द थिंग्स एंड दे एंड अप बीइंग द वर्स्ट पर्सन एवर, द अगलीस्ट लायबिलिटी एनीबॉडी कैन हैव इन देयर लाइव्स। आई एम टेलिंग दैट। एंड ये असॉल्ट करते हैं लोगों को। आपको क्या लगता है, आप मेंटली इतना वीक फील करते हो, इतना सेंसिटिव फील हो, आप इतने सेंसिटिव आपका कोर हो चुका है, ये क्यों है? क्यों है? ये पहले तो नहीं था, कैसे हो गया ये? अगर आपका ये कोर पहले से था तो आप कर सकते हो इसको भी, ठीक, बट एक कुछ रीजंस हुए होंगे ना जिसकी वजह से आपका कोर इतना वास्ट चेंज पे गया है ना। तो वो जो रीजंस हैं वो उसके बिहेवियर से डिराइव हुए हैं, और उसके बिहेवियर में चीज़ें हैं उसको रियलाइज नहीं हुई है, क्योंकि उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव नेचर का आई भी नहीं पता है, उसको नहीं पता है। और उसको पता भी होगा तभी वो झाड़ कोशिश नहीं करेगा कि वो कुछ कर ले अपने लिए। उसको अगर अपने लिए कुछ करना तो वो पैसा है, उसको पैसे से मतलब है, वो पैसा कमाना चाहता है, वो पैसे से जीना चाहता है, पैसे ही अपने अंदर ठूसना चाहता है, पैसे निकालना चाहता है, ठीक। और वो पैसे से भी नहीं है, तो वो मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप अपने आप को कृपया ना भूलें, और ना किसी और को वो हक दें कि वो आपको इतना घटिया ट्रीट करे, ठीक है। आई नो यू गाइज लव द पीपल, सम पीपल ऑफ यू माइट बी लविंग स्टिल, कि मतलब तुम लोग सही, आप लोग मतलब कुछ लोग आप में से अभी भी उन लोगों से इतनी प्यार मोहब्बत करते होगी कि मतलब अगर वो अब सुधर जाए तब भी बात ठीक हो जाए। मेरे साथ से अभी बात नहीं ठीक हो सकती। कैन यू चेंज योर पास्ट? कैन यू चेंज द मोमेंट वेयर यू वर फेल्ट कि you were made to feel that you're worthless, you were made to feel that you are useless, you were made to feel like you're very small, you were made to feel like you're very weak, you were made to feel like sensitivity is your weakness, and I'm practical, that's how the world works. If you were made to feel any of these feelings or any other feeling wherein you felt disrespected, my love, dear, you never deserved it. Okay? You never deserved it. And मैं तो यही बोलूँगी, never give another person third chance. आप second chance सोच सकते हो, है ना, देने का ट्राई भी कर सकते हो। आप हो सकता है आप unintentionally second chance दे दो इंसान को। मैंने भी दिया था, मैं तो बहुत chances दिए, but I really don't think any of it will change the other person. I still believe, I still feel कि वो एक लेवल के बाद एक लेवल के बाद एक लेवल ऐसे बढ़ता जाता है डिसरिस्पेक्ट उन लोगों का, वो कम नहीं होता है, और वो बहुत ईगो होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो बात नहीं करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं करा जा सकता है, ठीक है। उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति बोलने के भी लायक नहीं बचा है, उसका जनरली कुछ नहीं करा जा सकता है, बट दैट डजंट मेक यू फील, और दैट डजंट मेक यू बी ओके विद थिंकिंग कि लाइफ एंड हो जाएगी तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। माता श्री, पिता श्री, अंकल आंटीज, बहन भाई, फ्रेंड्स, डियर्स, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, प्लीज़ don't forget yourself, don't forget why you are living. There are people attached to your life, and अगर आपके लाइफ से people भी attached नहीं है, please think about yourself, please think about yourself, don't feel like that. अगर आपको फील करो, आप अपने एक कागज पे लिखो, डायरी में लिखो, जर्नलिंग शुरू करो, ठीक है। let yourself be empty, ठीक है। उस चीज़ को निकालो अपने अंदर से, अपने सिस्टम से निकालो, you will feel happy। अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपनी वीडियोस बनाओ, बोलो चीज़ों को, अपने आप से अपने सिस्टम से निकाल दो। एक बार निकाल देना चीज़ें, जैसे निकाल लो, बात खत्म, अब बात खत्म। मेरे अंदर का गंदा निकल चुका है, लेकिन तुमने मेरे साथ किया है, वो नहीं बदलेगा। There is a past that you have written from your hands, right? तो वो मैं तुम्हें बदलने का चांस दूंगी नहीं, ठीक है। और तुम अगर बदल सकते हो तो तुम अपने लिए ही बदलोगे, अपने ही आदतों से बदलोगे, अपने ही सोच से बदल पाओगे। मेरे बोलने से तुम लोग नहीं बदलने वाले हो, ऐसा सोचो, ठीक है, ऐसा सोचो, और अपने आप को याद रखो, ठीक है। यू आर लिविंग, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, तुम्हारे साथ झांट कुछ हो जाए भाई, झांट घटिया से घटिया चीज़ हो जाए तुम्हारे साथ, ठीक है। हाइपोथेटिकली always say this to yourself, I am stronger than this, I am stronger than this, and you will not realize how much powerful the statement is. इतना पावरफुल स्टेटमेंट है। तुम्हारे साथ घटिया से घटिया चीज़ हो रही हो ना, मतलब इमोशनली, फिजिकली, तो तुमको अपने आप एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ फिजिकली कुछ होता है, दो भाई दो, किसी से करने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया नहीं करते रहो कि डर नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो डर, जिस चीज़ से डर लगे ना वही चीज़ करो, वही चीज़ करो। ये मत करो कि मतलब दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करने से डर लगता है, डिसरिस्पेक्ट मत करो दूसरे की, until unless they are being good to you, be good to them, be okay with them, don't try to be that alpha ego वाला पर्सन कि मतलब हमको तो फर्क नहीं पड़ता, तो हम सबकी बैंड बजाते घूमेंगे, ऐसे मत बनो। जो तुम्हारी बैंड बजाने का इंटेंट भी शो करे, उसकी बैंड बजा के रख दो, सिंपल, ठीक है। बाकी मैं ये बोल रही हूँ कि डोंट फॉरगेट योरसेल्फ, ऑलवेज से दिस टू योरसेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस। अगर आप अभी बिलीव नहीं करते चीज़ पे, आप स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो सकते, आपको भी बिलीव नहीं है, बट विद टाइम आपको बिलीव हो जाएगा इस चीज़ पे। बट अभी आपको शुरू करना क्या बोले से, आई एम स्ट्रॉन्गर देन दिस, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, you will withstand all this phase. This is just a phase. This is just a cheap organism that is trying to make me feel like that. But I am not going to feel like that because I'm not like him. I am not like him. I don't have a fragile mindset. Say this to yourself. If you can't say all of it, just say I am stronger than this. You can't make me feel like that. I have not given you that position in my life to speak such words to me. Get out. Get out. Be in your fucking lane. ये सारी लाइन आपका प्रयोग कर सकते हैं, बट आपको बेसिक चीज़ बता दूँ, you are stronger than this. Okay? You're stronger than this. Don't feel like that कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ खत्म कर देनी चाहिए. Don't you dare think like that. Please. आपको नहीं पता बिटाएंगे आपकी मेंटालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप अपने आप को, मतलब आप अगर गलत डायरेक्शन में अपनी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग लेंगे तो आप जनरली उस पाथ पे चले जाएंगे, एंड देन इट विल बी मोर टफ फॉर यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। बट येस, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी लेट देन नेवर, ऑलवेज। अगर आप
आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, आप में से कुछ लोग होंगे जो आप ऐसे सोचेंगे हम तो 50 के, हम तो ओल्ड हो गया, तो हम किसी काम के नहीं रहे, हम पे पैसा नहीं कमाते। आप जितना अपनी एज में काम करके बैठे हैं, घर का काम किया होगा, बाहर का काम किया होगा, इतने सारे आपने एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी। आप ऐसे तो नहीं बड़े हो गए तुरंत एकदम, आप बच्चे थे एकदम तुरंत, ऐसा तो नहीं ग्रेजुअली लाइफ वेंट राइट। आप धीरे धीरे आपने अपना मेंटालिटी इतना डिटोरिएट कर लिया कि आप ऐसे सोचने लगे। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, नेवर फॉरगेट दिस, नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है। और स्ट्रेस, इन सब चीज़ों का आलतू झाटू फालतू जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जो आपको ऐसा फील कराते हैं, इन लोगों का स्ट्रेस प्लीज़ मत लीजिए। इनसे बहुत सारी डिजीजेस ड्राइव होती हैं एंड दैट इज एक्चुअली वेरी कंसर्निंग। आई एम लेजिट टेलिंग यू, स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ गेटिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑफ हैविंग टिनाइटिस, ऑफ हैविंग पैनिक अटैक्स, ऑफ हैविंग ब्रेन स्ट्रोक, ऑफ हैविंग हार्ट अटैक। आप मसल्स जो होती हैं हमारी, जो हमारा बॉडी है, वो काउंट रखता है चीज़ों का। मैं आपको बोल दूँ, इट इज बेटर लेट देन नेवर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अभी जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लीजिए एक दिन का वक्त, दीजिए अपने आप से, बैठिए, सॉर्ट करिए, इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि सही में क्या दूसरा इंसान को आपने इतना हक दिया भी था और आपको पता चलेगा आपने हक नहीं दिया था। वो बदतमीज है, वो सुअर है, वो बहुत ही ज़्यादा नीच है, बट आपको क्या करना है, आपको उसके स्तर पे नहीं गिरना है, बट आपको अपने दिमाग में ना बिच मेंटालिटी रखनी है। यू नीड टू थिंक, आई डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक, आई रियली डोंट। यू गेट आउट, आई नेवर वैल्यूड you, you never valued me, I valued, because that was me, that was my standards, and I know I did keep my standards down to, you know, have talked to be able to talk to you, but you really never deserved all of it, so you really need to go out of my life. या यू रियली नीड टू गो आउट ऑफ माय लाइफ। ऐसी अपनी मेंटालिटी रखो, थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो। और मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करती हूँ, ट्राई इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप वॉक करिए, वॉक करिए। मैं आपको जनरली बता रही हूँ, मेरे से 200 स्टेप नहीं हुए थे डे 1 पे। मैं ये भी नहीं बोली मैं बड़ी कंसिस्टेंट हूँ, मैं नहीं हूँ कंसिस्टेंट बिकॉज़ ऑफ सम रीजंस, आई नो दोज आर रीजंस टू मी, बट एक्सक्यूजेस फॉर सम पीपल, यू नो, दैट आर नॉट नोन टू माय लाइफ, बट इट्स फाइन। यू गाइस हैव योर ओन पर्सपेक्टिव एंड आई थिंक कि आपको अपने लाइफ में कोई एक एडिशनल चीज़ ऐड करनी चाहिए, लाइक समथिंग न्यू, समथिंग तड़का जैसा, कि आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप कोई हॉबी हो, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग रोप्स, है ना। और अगर वो सब भी ना हो आपसे, तो आप फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे अपने साथ बैठ के सिर्फ गहरी सांसें लीजिए, रेक्टेंगल ब्रीदिंग करिए। रेक्टेंगल ब्रीदिंग आपको नहीं आती, मैं आपको भी बता देती हूँ। इसमें क्या होगा, देखो आपके अपने सामने ना ऐसे करना है, ऐसे करते रहना। मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। होल्ड 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 होल्ड, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगी नहीं, मैं आपको सीधे करके बताऊँगी। अगर आप लोग मुझे वीडियो टू एक्स देखेंगे तो आपको जल्दी लगेगा, बट करके देखिए आप, बढ़िया लगेगा अंदर से। और आपको जब बहुत ज़्यादा पैनिक आए ना, यहाँ पे जब आप सब एक्सेल करते हो, होल्ड करिए, जब आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो एकदम सांस लीजिए गहरी सी और एकदम छोड़िए सांस को, बहुत फोर्स से छोड़िएगा। और छोड़ने के बाद अब आपके अंदर कोई हवा नहीं है, अब आप उस पोजीशन में अपने आपको होल्ड करिएगा, ठीक है। 2-3 सेकंड्स तक होल्ड करिएगा एंड फिर आपको जैसा मन करे वैसा होल्ड करिए। मेरे हिसाब से 3 सेकंड्स आर फाइन। और